Hello friends, welcome again. My this video is regarding human physiology. It is very vast topic, but this video is very important for the medical entrance exam point of view. So the student who are preparing for the NEET exam, for the medical entrance exam, they should watch this video. Human physiology. The term human. Human means obviously the human beings, and physiology. Physiology is what? Physiology. Actually, the physiology is the scientific study. Okay, it is the scientific study of functions and mechanism in a living system, like how an organism, how a human body works. As we all know, human body is a machinery, complex machinery system. So how it works? This is the human physiology. So the human physiology is very vast. It contains digestion, excretion, and cardiac, and so on. Now in this video, I'm going to take the topic digestion. So digestion is what? Digestion is the breakdown of complex food material and their assimilation. Breakdown of food material in a very simple language. Obviously जो हम फूड खाते हैं यार, उसका ब्रेकडाउन होना तो हमारे माउथ से शुरू हो जाता है. So the breakdown of food complex, fine, food material, sorry, and their assimilation. Assimilation is the process of taking in and fully absorb and digest the nutrients. क्योंकि जो हम food ले रहे हैं obviously उसमें nutrients है. We have to absorb this. That's how, मतलब absorption के बाद, after the absorption we can excrete out the waste. So that's the assimilation. Here I am showing the stages of digestion. Digestion के stages भी होते हैं, like intake, जो हम खाना खाते हैं just जैसे ही मुंह के अंदर लिया, that is intake. Mastication या chewing of the खाना. Deglutition यार obviously swallow of the खाना. ब्रेकडाउन आपका एक्चुअली में सलाइवरी अमाइलेज, मतलब सलाइवा में ही स्टार्ट हो जाता है. सलाइवरी अमाइलेज आपका कार्ब्स को हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में, ब्रेकडाउन में. एंड एब्जॉर्प्शन जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, न्यूट्रिएंट्स है खाने में, तभी तो हम खाना खाते हैं, सो दैट वी कैन यूज दैट न्यूट्रिएंट्स एज अ सोर्स एनर्जी. एंड एसिमिलेशन सिस्टम हैज़ द synonyms also: gastrointestinal tract, which is abbreviated as GIT, gastrointestinal cavity, and alimentary canal. Origin of the digestive system. Origin of the digestive system is from the start of the soft palate. Later on I will discuss the hard and the soft palate, but till the start of the soft palate, which is ectodermal, and after the soft palate till rectum. Rectum तो पता ही है, endodermal. So this is very important कि origin कहाँ से है digestive system का. तो till the start of the soft palate and after the soft palate till rectum. Parts of the digestive system. Parts आपके digestive system के क्या है? Mouth से start हो जाता है. जैसे intake, okay, intake of food, तो ये mouth से ही लेते हैं, तो ये आपका mouth से ही start हो जाता है. Mouth is what? Mouth is मतलब opening of the lips, slit-like structure, lips, and then buccal cavity. Buccal cavity is the chewing and mastication. Buccal cavity के inside में आपको tongue मिलता है, teeth मिलती है, salivary gland मिलता है. Then pharynx. Pharynx has 3 types: nasopharynx, oropharynx, and laryngopharynx. Later on I will discuss. Food pipe. Food pipe, which is esophagus. Gullet, you can say. Gullet is the opening of food pipe. Okay, so the food pipe is known as esophagus, but gullet is the opening of food pipe. Then stomach में भी आपके parts होते हैं, has parts: cardiac, fundus and pylorus. Body भी होती है. Actually body is not a part. Body की stomach एक body है, तो उसी को body बोलते हैं. Space होता है उसमें जहाँ पे आपका store होता है food. तो cardiac, fundus and pylorus, 3 parts of the stomach. Small intestine again has 3 parts: duodenum, jejunum and ileum. Large intestine again has 3 parts: cecum, colon and rectum.
So in this video, I'm going to share the mouth and the buccal cavity, but later on, pharynx, food pipe, stomach, the rest of the topics I will discuss. Buccal cavity, oral cavity contains walls, roof, floor. So how can? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हार्ड एंड द सॉफ्ट पैलेट है. ये जो पैलेट है ट्रीटेड एज अ और कंसिडर्ड एज अ रूफ एंड डोर्सल सरफेस ऑफ द टंग. डोर्सल सरफेस ऑफ द टंग कंसिडर्ड एज अ फ्लोर. फाइन. तो ये क्या है कि दिस इज द टॉप ऑफ द टंग विच इज क्लोजेस्ट टू द रूफ ऑफ द माउथ. Now the cheeks present laterally. Teeth we all know. This teeth and this lips, it is present anteriorly. Now the frenulum. ये अपर लिप्स पे भी फ्रेनिलम है, लोअर पे भी है. एंड मिरर पे आप जाओ और अपलिफ्ट करो अपनी टंग को, देन एक और दिखेगा, ये फ्रेनिलम होता है. फ्रेनिलम क्या होता है? फ्रेनिलम यूज to attach the lips here also and the tongue. Actually, it works to stabilize the movement of tongue. Fine. And it is made up of soft tissue that attaches the upper lip to the upper and also lower lip to the anterior surface of the maxillary gingiva. Now, the uvula. Uvula also known as, this is uvula. Uvula also known as velum palatini. अब ये यूव्यूला क्या है? मतलब हमें लगता है ये टीयर ड्रॉप शेप्ड पीस, ये क्या है, ये क्यों लगा है? इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सॉफ्ट टिश्यू दैट ऑब्वियसली हैंग्स डाउन द बैक टू योर थ्रोट. दिस इज थ्रोट पे ही है, ये आपके डाउन में भी है. तो एक्चुअली व्हेन यू ईट, योर सॉफ्ट पैलेट एंड दिस यूव्यूला प्रिवेंट फूड्स एंड लिक्विड्स फ्रॉम गोइंग अप टू योर नोज में खाना ना जाए, तो ये प्रिवेंट करता है. फाइन. सो इट प्रिवेंट फूड्स एंड लिक्विड्स फ्रॉम गोइंग अप टू योर नोज. दैट्स द फंक्शन ऑफ दिस वेलम पैलेटिनी. नाउ द पैलेट्स. यहाँ आपका पैलेट है, ये हार्ड पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है. पैलेट्स में क्या होता है? ये हार्ड पैलेट में आपका पैलेटिव र्यूगीज होती है. ये जो लाइंस दिखती है, टच करेंगे अगर हम अपना टंग ऊपर पे, मतलब हार्ड पैलेट पे, तो यहाँ पे कुछ लाइंस आपको फील होंगी कि कुछ है, ये लाइंस है, ये बोन्स टाइप है. दिस इज पैलेटिव र्यूगी. ये क्यों होती है? ये आपके फूड को होल्ड करती है ड्यूरिंग मैस्टिकेशन. सो इट होल्ड्स द फूड ड्यूरिंग मैस्टिकेशन. फाइन. एंड जैसे ही हार्ड पैलेट एट द वर्ज ऑफ द एंड ऑफ द हार्ड पैलेट स्टार्ट हो जाता है आपका सॉफ्ट पैलेट. ये आपके मिड पैलेट रिज है जो कि डिवाइड करती है लेफ्ट टू द राइट, लेफ्ट एंड राइट, सॉरी. या here you can see this incisive papilla. Incisive papilla क्या होता है? या incisive foramen. ये एक पॉइंट होता है. इंसीजर, 2 टीथ होते हैं हमारे इंसीजर में, आगे वाले. इंसीजर टीथ के बीच में एक बहुत ही छोटा पॉइंट, एक होल होता है. तो वो होल मतलब नीडल, उसमें एक नीडल, सिंपल, बहुत ही ज़्यादा थिन नीडल जा सकती है. टंग आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो टॉन्सिल की स्टार्टिंग से ये राउंड ओवल शेप है, ये जो एंड हो रहा है यहाँ तक ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व प्रेजेंट होते हैं. एंड ऑल्सो ये पोस्टीरियर ऑफ द टंग है, जिसका 1/3 पार्ट इसमें इंक्लूडेड है टंग का. ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो है वो कैरी करता है एफरेंट सेंसरी फाइबर्स. एंड बाकी ये जो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के बाद ही आपका हाइपोग्लॉसल नर्व टिल, मतलब यहाँ तक टिप ऑफ द टंग तक होता है हाइपोग्लॉसल नर्व, जो कि 2/3 पार्ट कंटेन करता है टंग का एंड एंटीरियरली है. एंड ऑल्सो इसका क्या फंक्शन है? ये कैरी करता है एफरेंट नर्व, एफरेंट सेंसरी नर्व्स. फाइन. अब आते हैं टर्मिनल सर्कस पे. टर्मिनल सर्कस, ये आपको दिख रहा है, ये जो लाइन ऐसे गई हुई है, ये टर्मिनल सर्कस है. ये इट इज़ फाउंड इन दी इट इज़ दी ऑर्गन है ये, फाउंड इन द डोर्सल सरफेस ऑफ द टंग. ये टर्मिनल सर्कस डिवाइड के तौर पे ये यूज़ होता है. एंड अब आते हैं मीडियल सर्कस पे. ये जो आपको दिख रहा है, ये लाइन जो सीधी सी गई है, ये है मीडियल सर्कस.
It is also used to divide the tongue, divide the body. Now अब आते हैं इस टॉन्सिल्स पे. लिंगुअल टॉन्सिल्स यहाँ पे शो हो रही है आपकी, ये रही ये लिंगुअल टॉन्सिल्स, ये पैलेंटाइन टॉन्सिल्स. तो ये क्या होती है, टॉन्सिल्स इज यूज टू प्रिवेंट द इन्फेक्शंस. मतलब दीज टॉन्सिल्स कंटेन्स B and T lymphocytes which get activated when harmful bacteria and the viruses come in contact with tonsils. Okay, these are the tonsils. Now this point, ये जो है ये पॉइंट है, ये है आपका फोरामेन सीकम बोलते हैं इसको. दिस पॉइंट इज नोन एज फोरामेन सीकम. ये क्या होता है, ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग कंसिस्ट ऑफ डिप्रेशन और अ पिट. ऑब्वियसली इट इज अ पिट लाइक स्ट्रक्चर हियर over the tongue, and actually it is the site from which the thyroglossal duct originates and then leads to the thyroid gland formation. Fine. And also known as raminant thyroglossal duct. Actually it is raminant. अब आते हैं टंग की मैपिंग पे. सी, ये जो राउंड ओवल शेप्स के दिख रहे हैं, बिटर टेस्ट आता है इसमें. हमारे टेस्ट बर्ड्स ऑल ओवर द टंग प्रेजेंट नहीं होते. हमारे टेस्ट बर्ड्स पर बस इसी में ही है इतना, ये पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड लेटरल. तो अभी मैं आपको टेस्ट बर्ड्स के बारे में दिखाती हूँ. लेकिन ये जो ब्लू है ये आप देख सकते हो, बिटर ओवल शेप है, राउंड ओवल. ये बिटर के लिए यूज होता है, सोर के लिए दिस, एंड स्वीट के लिए दिस फ्रंट. ये जो डॉटेड डॉटेड पार्टिकल टाइप से स्ट्रक्चर है, ये आपका स्वीट के लिए यूज होता है, स्वीट टेस्ट आता है. सो टेस्ट बर्ड्स में आपका सबसे पहले होता है गस्टैटो रिसेप्टर और गस्टैटरी सेल्स. यू कैन से गस्टैटरी सेल्स और द गस्टैटो रिसेप्टर्स. These are located in the oral cavity, which brings food and fluids from outside the body into the gastrointestinal tract. Fine, it is noted. And taste buds work in concert. So actually the papilla where the taste buds are situated. तो papillas के अंदर ही आपका gustatoreceptory cells, gustatoreceptors are present. Fine. एक और चीज बता दूं, taste buds present inside the papilla. Taste buds present only on dorsal and anterolateral part of the tongue. Fine. ये आप देख सकते हैं, anterolateral and dorsal surface पर ही present है, otherwise कहीं पर भी आपका taste bud present नहीं होता. Now these taste buds are help in tasting the foods. टंग से आपको सिर्फ टेस्ट पता चलता है, एंड फ्लेवर आपको कैसे पता चलता है, फ्लेवर बाय नोज, बाय स्मेलिंग द फूड कंटेंट्स. फाइन. पैपिला आर ऑफ 4 टाइप्स. पैपिला क्या है, पैपिला के इनसाइड में आपका टेस्ट बड प्रेजेंट होता है, ये होल्ड करता है टेस्ट बड्स को. तो पैपिला में आपका फंगीफॉर्म हो गया, फिलीफॉर्म हो गया, सर्क्यूमवैलेट हो गया, फॉलिएट हो गया. फॉलिएट में आपका रैबिट, डॉग्स एंड कैट्स, वर्टिकल फरोज स्ट्रक्चर टाइप होता है, एंड रैबिट, डॉग्स एंड कैट्स में ही यूज होते हैं, मतलब होता है. एंड फंगीफॉर्म आपका फंगस, ऑब्वियसली नेम से ही पता चल रहा है. एंटीरियर में प्रेजेंट होता है, ये स्वीट, सॉर एंड सॉल्टी टेस्ट बर्ड्स इसमें होते हैं. ये एंटीरियर एंड लेटरली प्रेजेंट होता है, तो स्वीट, सॉर एंड सॉल्टी टेस्ट हमें आता है. फिलीफॉर्म आपका मिड में प्रेजेंट होता है. ये जो मिड में, ऑब्वियसली मिड में कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता, तो इसमें नो टेस्ट बर्ड, पार्टिकल टाइप होते हैं. एंड मिड टंग में आपका फिलीफॉर्म प्रेजेंट होता है, जिसमें कोई टेस्ट आता ही नहीं है. सर्क्यूमवैलेट में आपका पोस्टीरियर में प्रेजेंट होता है, राउंड ओवल शेप्स के होते हैं, बिटर टेस्ट आता है हमें. कैसा टेस्ट आता है, ऑब्वियसली बिटर. फॉलिएट बता ही दिया. देन आते हैं सलाइवरी ग्लैंड. अब आता है सलाइवरी ग्लैंड. Salivary glands in mammals are exocrine gland that produce saliva through a system of ducts. Okay, तो अब आपका salivary gland में salivary amylase enzyme is present. तो salivary gland is of 3 types in the human beings, and infraorbital, the last one type is infraorbital, जो कि dogs, cats and other mammals में use होता है.
सलाइवरी ग्लैंड आपका 3 टाइप का हो गया, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल। पैरोटिड आपका इन फ्रंट ऑफ ईयर लोब के प्रेजेंट, इन फ्रंट ऑफ ईयर लोब में प्रेजेंट होता है। इसमें स्टेम्स एंड डक्ट्स होते हैं जो कि 2 इन नंबर है, बिकॉज यू हैव 2 ईयर लोब्स, तो 2 इन नंबर हो गया। म्यूसिन टाइप सीक्रेशन होती है, यानी कि थिक लिक्विड आता है, सलाइवा का थिक लिक्विड आता है, तो वो हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स हो गए। फाइन। अब सब मैक्सिलरी जो होता है वो बिलो मैक्सिला और मैंडिबल पे होता है। इसको ऑल्सो हम सब मैंडिबुलर डक्ट भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज जस्ट बिलो मैक्सिला एंड मैंडिबल। एंड वॉर्टन्स डक्ट होता है 2 इन नंबर, बिकॉज अपर एंड द लोअर लिप, तो 2 इन डक्ट हो गया, 2 इन नंबर हो गया, सॉरी। एंड इसका मिक्स्ड सीक्रेशन होता है, लाइक नॉट सो थिक नॉट सो थिन, मिक्स्ड सीक्रेशन। सबलिंगुअल इज आपका बिलो टंग होता है, टंग की जस्ट बिलो द टंग। इसमें रिवनस और बर्थोलेंट डक्ट प्रेजेंट होता है। 1 इन नंबर ऑब्वियसली आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि ऑब्वियसली बिलो द टंग है तो एक ही होगा 1 इन नंबर। सीक्रेशन वाटरी टाइप होता है, इसको सेरस सीक्रेशन भी बोलते हैं। ये पूरा आपका वाटर लाइक वाटर टाइप ही होता है, वाटरी। तो आप समझ सकते हो कि वाटरी सलाइवा आपका बर्थोलेंट डक्ट से आता है, जो कि बिलो टंग होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड। Now some points are there. See, salivary amylase, salivary gland से आपका डिसीज भी होता है, जेरोस्ट्रोमिया डिसीज क्या होता है, सीक्रेशन को डिक्रीज कर देता है। सीक्रेशन ऑफ व्हाट? सीक्रेशन ऑफ सलाइवा, उसको डिक्रीज कर देगा। तो जेरो मीन्स ड्राई, स्ट्रोम मीन्स माउथ, स्ट्रोमा और स्ट्रोम, तो स्ट्रोमिया इट इज अ डिसीज। स्ट्रोमिया मतलब कि आपका ड्राई हो जाता है माउथ। फाइन। मम्स डिसीज अगेन इन्फेक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड ही है, लेकिन ये वायरस के थ्रू होता है जो कॉज द स्टेरिलिटी। फाइन। तो इन्फेक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड थ्रू वायरस कॉजेस स्टेरिलिटी। फंक्शन ऑफ salivary amylase, why I'm saying salivary amylase, it is salivary gland. Salivary amylase is the enzyme. So the function of saliva is to mix the food. ओके, मिक्सिंग ऑफ द फूड, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि आई टोल्ड यू कि कार्ब का डाइजेशन वहीं शुरू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है, टाइलिन प्रेजेंट है, टाइलिन इज सलाइवरी अमाइलेज। कार्योजेनिक प्रॉपर्टी भी हमारा ये सलाइवरी ग्लैंड शो करता है। इट हैज़ कैलिक्रेन बैक्टीरियोसाइडल एक्शन को शो करता है। So guys, this is all about mouth and the buccal cavity. Mainly टंग के बारे में बताया मैंने, टीथ के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड आई विश कि मैं इससे भी अच्छा बता पाऊँ। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।